students. Today we are going to start unit 11th, that is marketing management. In this chapter we will learn about the marketing, difference between the marketing and selling, functions of marketing and elements of marketing mix. So let's start. First of all, we must know what is a market. In the traditional sense, the term market refers to the place where buyers and sellers gather to enter into transactions involving the exchange of goods and services. So it is the traditional meaning of a market. But now it has a broader meaning. It refers to set of actual and potential buyers of a product or service. So the difference between these two concepts is that in the traditional sense, it is a gathering place. But in modern sense, it focus on actual and potential buyers. So that is the difference. Marketing. Marketing is a social process wherein people interact with others in order to persuade them to act in a particular way. Say to purchase a product or service rather than forcing them to do so. So they are not forcing anyone to buy their product. Instead of that, they are persuading them. And what is marketing management? It refers to planning, organizing, directing and controlling of activities which facilitate exchange of goods and services between producer and consumer or user of product and services. So the meaning of marketing management is very simple. You see the first line, it refers to planning, organizing, directing and controlling, and other things are similar to previous definition, like exchange of goods and services between producer and consumer. What can be marketed means which type of things can be marketed. So first of all, physical products can be marketed. Their marketing can be done like smartphone, motorcycle, iPod, etc. Services can also be marketed, like you have seen many advertisement regarding the insurance, healthcare, BPO, security services, billing services, financial services. Ideas can also be marketed, like the idea of polio vaccination, HelpAge India, family planning, donation of blood, etc. So, in certain cases, persons can also be marketed, like in elections. Any candidate can be promoted or marketed for a particular post. Some place can be also marketed, like visit Agra, city of love, Udaipur, city of lakes, etc. An experience can also be marketed, like customized experience as dinner with a cricketer or lunch with a celebrity. So next one is properties. It can also be marketed, like intangible rights of ownership of real estate. In financial property, events can be marketed, like sports event like Olympic or cricket series, Diwali Mela, fashion show, etc. Information can also be marketed, production, packaging and distribution of information by organization such as by university, research organization, etc. And organizations can also be marketed, like boosting their public image. Organizations such as Hindustan Lever, Ranbaxy, Dabur, Procter and Gamble, these are the renowned companies, and they are time to time marketing their companies also besides their product. So from this topic we can see that we can market anything. It may be a physical product, service, idea, person, place, experience, property, event, information, organization, whatever we see, we can market it. Now there is a difference between marketing and selling.
because generally people think both are same and one thing, but there is a great difference between them. First difference is part of the process versus wider term. Selling is only part of the process of marketing, means marketing involve many subheadings or subparts, and selling is one of them. So it is smaller to marketing. Marketing is much wider term consisting of number of activities such as identification of customer need, developing the product to satisfy these needs, fixing prices and persuading the potential buyer to buy the same. So according to the first point, marketing and selling are different. Selling is part of marketing, and marketing is a wider term than selling because it includes selling. Second point, transfer of title versus satisfying customer need. The main focus of selling is on affecting transfer of title. Transfer of title here means that the goods before buying belongs to the shopkeeper, and after buying or after selling it belongs to the buyer. So generally the title is transferred through the exchange mechanism, means they are paying money and getting the product and the title also. In contrast, in marketing activities, it put greater thrust on achieving maximum satisfaction of the customer needs and wants. So you have to focus on always customer needs and wants in marketing. Profit through maximizing sales versus customer satisfaction. All selling activities are directed at maximizing sales and thereby the profits of the firm. In other words, the emphasis is on profit maximization in selling. But in marketing, the main focus is on customer satisfaction. Next point is start and end of the activities. Selling activities start after the product has been developed or manufactured, while marketing activities start much before the product is produced and continues even after the product has been sold. So it is a great difference. जब कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं है उससे पहले से मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी सेल होने के बाद भी मार्केटिंग चलती रहती है, जबकि सेल्स जो है प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होती है. तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है. नेक्स्ट पॉइंट इज difference is in emphasis. In selling, the emphasis is on bending the customer according to the product, while in marketing the attempt is to develop the product and other strategies as per the customer needs. So you can see that every time they are focusing on customer needs and wants and satisfaction in marketing. तो ये पॉइंट जो है आपको नोट करना है, क्योंकि इसमें एक लाइन लिखी हुई जो फर्स्ट लाइन है कि it emphasizes on bending the customer according to the product, while in marketing attempt is to develop the product and other strategies as per customer need. तो ये जो लाइन है bending the customer according to the product, इसको आप अंडरलाइन कर लें. और बोर्ड में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि आइडेंटिफाई इट. नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस इन स्ट्रेटजीज. सेलिंग इन्वॉल्व एफर्ट्स लाइक प्रमोशन एंड परसुएशन. सेल्स में यही होता है, एक तो प्रमोशन करते हैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग के थ्रू, और बहुत सारी स्कीम्स वगैरह लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट की सेल बढ़े जिससे. और परसुएशन भी होता है, थोड़ा दबाव भी डालते हैं कस्टमर पर कि किसी तरह से वो हमारे प्रोडक्ट को ले ले, चाहे उसको उसकी ज़रूरत हो या ना हो. While marketing uses integrated marketing effort involving strategies in respect of product, promotion, pricing and physical distribution. मार्केटिंग में 4P के ऊपर फोकस किया गया है, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि सेलिंग जो है एक छोटा सा पार्ट है मार्केटिंग का. नेक्स्ट है इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज़. तो बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ डेवलप हुई हैं और ये एक लॉन्ग टाइम पीरियड से स्टार्ट हुई है, और इसको हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से देख सकते हैं.
बिगनिंग में क्या था कि आप ये मान के चलिए कि जब तक इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई थी या बिगनिंग में कुछ ही इंडस्ट्रीज थी, उस वक्त फोकस इस पे था कि प्रोडक्ट डेवलप हो जाए, केवल उसकी सेल हो जाती थी और कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। किसी भी चीज़ की इंडस्ट्री सेटअप हो गई, प्रोडक्ट बन गया, सेल हो जाएगी। उस वक्त जो है कि अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, तो मास प्रोडक्शन पर फोकस था बस। क्वांटिटी होनी चाहिए क्योंकि डिमांड काफ़ी आ रही थी, फर्स्ट टाइम लोगों ने प्रोडक्ट्स देखे थे। में प्रोडक्ट कंसेप्ट, अब जब नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ने लग गई, कंपटीटर्स आने लग गए मार्केट में बहुत सारे, तो उस वक्त अपने प्रोडक्ट को दूसरे से बेहतर दिखाने के लिए प्रोडक्ट में इनोवेशन किया गया। उसके साइज़, शेप, फीचर, परफॉर्मेंस, सब चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश की गई। एक कंपटीशन की फीलिंग आ गई। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट ओवरऑल फोकस करता है कि अपने प्रोडक्ट को किस तरह से उन्होंने दूसरों से अलग करके या बेहतर करके बेचना शुरू किया। सेलिंग कंसेप्ट, अब सभी लोग अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने लग गए थे, क्योंकि फर्स्ट कंसेप्ट थी प्रोडक्शन, जिसमें कि मास प्रोडक्शन होता था केवल और सेल हो जाती थी। फिर उसके बाद आया प्रोडक्ट कंसेप्ट, जिसमें कि प्रोडक्ट को इनोवेटिव बनाया गया, पहले के कंपैरिजन में डिफरेंट बनाया गया, फीचर्स बढ़ाए गए, परफॉर्मेंस बढ़ाई गई, सब कुछ अब सभी करने लग गए, सबकी समझ में आ गया। तो उस वक्त फिर किस तरह से सेल्स ज़्यादा हो, तो सेलिंग कंसेप्ट डेवलप हुई। सेलिंग कंसेप्ट में कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ सेल्स के फीचर्स उसमें डाले गए, उनको परसुएड करने की कोशिश की गई, मनाने की, और एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स का यूज़ किया। एक तरह से उनको जो है कि प्रमोशंस के लिए बहुत सारा जो है खर्चा करना पड़ा, जिसमें एडवर्टाइजिंग हो या पर्सनल सेलिंग हो, और कई सारी स्कीम्स हो सकती हैं कि एक के साथ एक फ्री, या फिर 50% ऑफ, या बाय वन गेट वन फ्री, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स आती हैं। तो वो सब यहाँ पर डेवलप हुई सेलिंग कंसेप्ट में, क्योंकि मेन प्रॉब्लम थी यहाँ पर कि सेल्स कम हो रही थी और प्रोडक्ट सबके ऑलमोस्ट सिमिलर थे। सेलिंग ये मार्केटिंग कंसेप्ट है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आया। इस फिलॉसफी में हमने फोकस किया कुछ बेसिक पॉइंट्स पर। जैसे हमने देखा, फर्स्ट पॉइंट में देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट और कस्टमर हु आर चूजन एज द टारगेट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट, यानी कस्टमर को सबसे पहले टारगेट करना। अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स एंड वांट्स, क्या उनको चाहिए, किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। डेवलपिंग प्रोडक्ट्स एंड सेटिस्फाइंग नीड्स, उसी तरह के प्रोडक्ट बनाए जैसे कस्टमर को चाहिए। और सेटिस्फाइंग नीड ऑफ टारगेट मार्केट बेटर देन कंपटीटर्स, कंपटीटर्स से अच्छी सर्विसेज देने की कोशिश करी, और प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव भी अपना रखा। तो मार्केटिंग कंसेप्ट से जो है कि बिल्कुल एक आउटलुक में चेंज हो गया कि किस तरह से हम सोचते थे। सेल्स में तो बिल्कुल निगेटिव थिंकिंग होती है कि किसी भी तरह से प्रॉफिट अर्न किए जाए, लेकिन मार्केटिंग में कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा गया। जो कंसेप्ट आई थी वो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट है। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट मार्केटिंग कंसेप्ट का ही एक्सटेंशन है। इसमें केवल सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग एफर्ट करने की बात कही गई है। हम केवल उन्हीं प्रोडक्ट्स का फोकस, उन्हीं प्रोडक्ट्स का जो है कि प्रोडक्शन करें, सेल्स करें, और इस मेथड से करें कि सोसाइटी को कोई नुकसान ना हो बल्कि बेनिफिट हो। इट पेज अटेंशन टू द सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। सोसाइटी के फ़ायदे की बात की है, एथिकल होना चाहिए, अनएथिकल ना हो कुछ भी, और इकोलॉजिकल यानी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट फ़िलासफ़ीज़ का एवोल्यूशन है कि किसके बाद कौन सी फ़िलासफ़ी आई। अब मेन टॉपिक है इसमें मार्केटिंग मिक्स का हमारा, तो ये लगभग जो है कि पूरा मार्केटिंग का आपके सामने चार्ट है, और इसमें मेन फोकस जो है 4P पर है। जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा प्रोडक्ट, उसी के पैरेलल में है प्राइस, फिर नीचे है प्लेस, और फिर प्रमोशन। तो ये 4P होते हैं।
इन 4P में से सब कुछ सिलेबस में नहीं है, तो हम लिमिटेड आइटम्स को पढ़ेंगे। जैसे कि प्रोडक्ट में हम ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग, ये 3 आइटम जो लास्ट वाले हैं इनको पढ़ेंगे। प्राइस मिक्स लगभग लगभग कंप्लीट रहेगा। प्लेस मिक्स को इस साल सिलेबस से हटा दिया है, और प्रमोशन मिक्स में भी लगभग सब कुछ रहेगा पब्लिसिटी को छोड़कर। तो प्रोडक्ट मिक्स में एक तो मार्केटिंग मिक्स जो है टर्म यूज़ हो रही है, तो मार्केटिंग मिक्स जो है 4P से बना है, कोई इंडिविजुअल आइटम नहीं है। इसमें 4P का यूज़ करते हैं, इसलिए इसको मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट में प्रोडक्ट मिक्स बोला जाता है, तो वो प्रोडक्ट मिक्स के जो एलिमेंट हैं ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग, उनको मिला के कंबाइंडली बोला जाता है, उसका कंबाइंड नेम है ये। उसमें से फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ब्रांडिंग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट अ मार्केटर हैज़ टू टेक इन द एरिया ऑफ प्रोडक्ट एज इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांडिंग। तो उसको डिसाइड करना होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड नेम की तरह सेल करें या जेनेरिक नेम की तरह सेल करें। ब्रांड नेम का मतलब जैसे आज की डेट में मान लेते हैं मैगी है, तो वो एक ब्रांड नेम हो गया। केवल नूडल्स के नाम से बेचते तो वो जेनेरिक नेम होता है। या टूथपेस्ट कोई आता है तो उसको टूथपेस्ट के नाम से भी बेचा जा सकता है, या फिर जो भी ब्रांड पॉपुलर है उनके नाम से बेचा जा सकता है। ब्रांडिंग के अंदर भी अलग अलग सब हेडिंग्स हैं। जैसे ब्रांड, अब ब्रांड इज़ ए नेम, वो कोई नाम हो सकता है, टर्म हो सकती है, किसी तरह का साइन या सिंबल हो सकता है, या डिज़ाइन हो सकता है, या इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई या पहचान करने के लिए ब्रांड का यूज़ किया जाता है। इट में भी प्रोडक्ट्स और गुड्स और सर्विसेज, और डिफ्रेंशिएशन के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल बाटा, लाइफ बॉय, डनलप, हॉटशॉट, पार्कर, कोई भी ब्रांड लिख सकते हैं। ब्रांड इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, विच हैज़ बेसिकली टू कंपोनेंट्स, ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क। फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट हैज़ द सिंबल ऑफ गट्टू ऑन इट्स बैक विच इज़ इट्स ब्रांड मार्क। उस पर एक इमेज लगी हुई है जो एक बच्चा पेंट करता हुआ दिखाई देता है, अगर आप एशियन पेंट के बॉक्स को ध्यान से देखें तो। अब ब्रांड नेम है नेक्स्ट। द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, जिसको हम बोल सकते हैं वो ब्रांड नेम होता है। इन अदर वर्ड्स ब्रांड नेम इज द वर्बल कंपोनेंट ऑफ ए ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट, इसे बोला जा सकता है। सफोला, मैगी, लाइफ बॉय, अंकल चिप्स, तो जिसको बोला जा सकता हो, जो वर्बल हो, उसको ब्रांड नेम बोलते हैं। ब्रांड मार्क भी होता है द पार्ट ऑफ ए ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, पहचान सकते हैं बट विच इज़ नॉट अटरेबल, जिसको बोल नहीं सकते। इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ ए सिंबल, या तो वो कोई सिंबल होता है, डिज़ाइन होता है, या कलर स्कीम होती है, किसी तरह के स्पेशल लेटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे फिर से एग्जांपल दिया है गट्टू ऑफ एशियन पेंट, एक पिक्चर है, ये इमेज है, या डेविल ऑफ ओनिडा और सिंबल ऑफ LIC। तो ये सब ब्रांड मार्क हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे आप कार्स में देख सकते हैं, मर्सिडीज़ का है, ऑडी का है, रिंग्स बने होते हैं, तो ये ब्रांड मार्क हैं। या टाटा में टी बना होता है। तो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड मार्क के साथ लॉन्च करती है। ब्रांड नेम तो होता है, ब्रांड मार्क भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेडमार्क। ए ब्रांड और पार्ट ऑफ ए ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। तो यहाँ ये डिफरेंस आ गया कि या तो वो ब्रांड को या उसके किसी पार्ट को जिसको लीगल प्रोटेक्शन मिली है उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं, यानी वो रजिस्टर्ड होता है लीगली, और फिर उसके बाद उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता। The protection is given against its use by other firms. Thus, the firm which got its brand registered gets the exclusive rights for its use. और कोई उसकी मर्जी के बिना उस ट्रेडमार्क को यूज़ नहीं कर सकता। In that case, no other firm can use such name or mark in the country. और वो अलाउ करते हैं तो यूज़ कर सकता है, उसके बदले उनको रॉयल्टी मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम। एक ब्रांड नेम जब हम डिसाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी कंपनी के लिए, तो
उसमें ये फीचर्स होने चाहिए। ये एग्ज़ाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं, बस यहाँ पर 7 पॉइंट है तो 3 पॉइंट्स मैक्सिमम पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल है, इजीली समझ में आ जाएंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, द ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट। कभी भी बड़ा ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए, ये माना जाता है मार्केटिंग में। छोटा होगा तो बोलना आसान होगा। तो शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस, इजी टू स्पेल, इजी टू रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर। जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं, पॉन्ड्स छोटा है, शॉर्ट भी है, इजी टू प्रोनाउंस है, सब कुछ है। वीआईपी बहुत शॉर्ट है, रिन, विम, तो शॉर्ट एंड सिंपल, इजी टू प्रोनाउंस, इस तरह से आप लिख सकते हो फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड है, ब्रांड नेम शुड बी सजेस्टिव। सजेस्टिव का मतलब है उसमें उसके फीचर्स होने चाहिए प्रोडक्ट के, उसके नेम के अंदर। जैसे यहाँ कुछ दिया हुआ है, रसिका या जेंटिल या प्रॉमिस, या इसके अलावा हम देख सकते हैं जैसे हाजमोला। हाजमोला से पता चलता है कि ये कुछ हाजमे से रिलेटेड है, या फिर उजाला। तो सजेस्टिव सेकंड हेडिंग आपके लिए हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है, ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव कैसे? जैसे सबसे अलग हो, जैसे लिरिल बिल्कुल सेपरेट है, स्पिरिट मिलता जुलता ना हो, सफारी, ज़ोडियक। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट, द ब्रांड नेम शुड बी एडेप्टेबल टू पैकेजिंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट टू डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। सभी लैंग्वेजेस में उसको यूज़ किया जा सके। ये हम लगभग जब भी हम कोई नेम डिसाइड करते हैं तो उस वक्त चेक कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी और लैंग्वेज में उसका कुछ और मीनिंग निकल के आ जाए, निगेटिव मीनिंग निकल के आ जाए, तो उससे बचना चाहिए। तो जब भी कोई ब्रांड नेम डिसाइड करते हैं तो बहुत केयरफुली करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, द ब्रांड नेम शुड बी सफिशिएंटली वर्सेटाइल टू एकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट विच आर एडेड टू द प्रोडक्ट लाइन। जैसे मैगी है, मैगी के अंदर भी वैरायटी है, कोलगेट के अंदर भी वैरायटी है, तो ब्रांड नेम ऐसा रख देते हैं कि वो एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है, उसके अंडर में बहुत सारे और प्रोडक्ट जो उससे रिलेटेड है वो आ जाते हैं उस कैटेगरी में। अगर ऐसा हम ब्रांड नेम रखते हैं तो वो वर्सेटाइल हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्स पॉइंट, इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली। उस ब्रांड नेम को हम रजिस्टर्ड करवा सकें, यानी कि वो किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए, तभी जाकर हमें लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी। नेक्स्ट है, चूजन नेम शुड हैव स्टेइंग पावर। आउट ऑफ डेट नेम नहीं रखने चाहिए, बहुत पुराने नहीं रख सकते हम नाम। ऐसा नाम होना चाहिए जो कि चलता रहे, पॉपुलर हो और मिलता जुलता भी ना हो। तो ये कुछ फीचर्स थे जो कि एक अच्छे ब्रांड नेम डिसाइड करने में हमें हेल्प करते हैं। पैकेजिंग, पैकेजिंग refers to the act of designing and producing the container or wrapper of a product। जो कुछ भी किसी प्रोडक्ट को हम परचेज करते हैं ना किसी फॉर्म में वो पैक्ड होता है, वही उसकी पैकेजिंग है। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केटिंग सक्सेस और फेलियर ऑफ मनी प्रोडक्ट। इसमें भी हमारे पास जो टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग तीन तरह की होती है, इसमें कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे टूथपेस्ट का एग्जांपल ले लिया। प्राइमरी पैकेज, टूथपेस्ट की ट्यूब होती है जो लगभग प्लास्टिक की बोल सकते हैं बनी होती है, और सेकेंडरी पैकेजिंग उसकी जो होती है वो एक छोटा सा बॉक्स होता है कार्डबोर्ड का, और फिर ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होती है जो पूरा कार्टन बना होता है या कॉरुगेटेड बॉक्स बोलते हैं जिसको। तो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी पैकेज से। इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स इमीडिएट कंटेनर, जिसमें वो पैक होता है। कोई मेडिसिन भी हो तो वो भी इसी तरह से होती है, इमीडिएट कंटेनर अलग होता है। इन सम केसेस द प्राइमरी पैकेज इज केप्ट टिल द कंज्यूमर इज रेडी टू यूज द प्रोडक्ट। तो प्राइमरी पैकेज को हम लास्ट तक संभाल के रखते हैं कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में हम उसको उसी वक्त छोड़ देते हैं। जैसे सॉक्स का एग्जांपल यहाँ दिया है, तो उसका जो प्राइमरी पैकेज है पॉलीथीन का कवर होता है, उसे निकाल के हम तुरंत फेंक देते हैं। लेकिन टूथपेस्ट के केस में हम लोग ट्यूब को लास्ट तक यूज़ करते हैं, और जब प्रोडक्ट ख़त्म हो जाता है तब उसे फेंक देते हैं या डिस्पोज कर देते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी पैकेजिंग।
It refers to additional layer of protection that are kept till the product is ready for use. जब तक प्रोडक्ट यूज़ करने लायक नहीं होता तब तक हम उस पैकेजिंग कवर को संभाल के रखते हैं। जैसे ट्यूब ऑफ शेविंग क्रीम या टूथपेस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल से तीनों पॉइंट्स हो जाएंगे लगभग। When consumers start using the shaving cream, they will dispose of the box but retain the primary tube. ऐसा ही सेम टूथपेस्ट के केस में भी होता है। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ये लॉन्ग डिस्टेंस तक लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैकेजिंग की जाती है। इट रेफर्स टू फर्दर पैकेजिंग कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर स्टोरेज, आइडेंटिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, अ टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर में सेंड द गुड्स टू रिटेलर इन corrugated boxes containing 10, 20 और 100 यूनिट्स। तो तीन लेवल हैं इसके पैकेजिंग के, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, हम पैकेजिंग से ही पहचान जाते हैं हमारा प्रोडक्ट कौन सा है। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, पैकेजिंग के जो लेवल हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं कि वो प्रोडक्ट स्पॉइल ना हो, ब्रेक ना हो, कई तरह से जो है कि उसको डैमेज ना हो, क्लाइमेट इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के जो कंटेनर्स होते हैं या पैकेजिंग होती है, कई बार वो इस तरह से होती है कि वो उसको यूज़ करने में हेल्प करती है। जैसे टूथपेस्ट की ट्यूब है, उसका शेप जो है इस तरह का कि हम उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर लेते हैं, वो किसी स्क्वायर फॉर्म में नहीं आती, उसकी शेप जो है यूज़र फ्रेंडली है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्रमोशन। प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए भी जो है उसका यूज़ किया जाता है। जो उसकी पैकेजिंग होती है उसी के ऊपर लेबलिंग भी होती है। लेबलिंग का मतलब है जो कुछ भी उस पैकेज पर या प्रोडक्ट पर जो है प्रिंटेड है वो उसका लेबल है। तो प्रमोशन भी साथ साथ होता है, एक ही चीज़ से दो चीज़ें हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है लेबलिंग। लेबलिंग का मीनिंग क्या है? जो कुछ भी किसी प्रोडक्ट पर प्रिंटेड है वो उसका लेबल है। कुछ भी लिखा हो प्रोडक्ट पर, वो सारी चीज़ें जो लिखी होती हैं वो एक लेवल है। और लेवल डिज़ाइन करने को भी आया एग्ज़ाम में कई बार, जो कि बहुत इजी होता है। उसमें हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे एक तो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए और उसके कंटेंट्स। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, मोहिनी टी है कोई, और उसके ऊपर लिखा होगा ISO 9001 और 200C सर्टिफाइड कंपनी। या कोई प्रिकली हीट पाउडर है तो उसमें बताया होगा कि कैसे रिलीफ उससे मिलता है। या मैगी का पैकेट है, उसका एग्जांपल ले सकते हैं, कैसे उसको बनाना है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कितनी एनर्जी उससे मिलती है, और उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो अभी फर्स्ट पॉइंट में हम कवर करेंगे डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। तो कंटेंट्स उसमें होते हैं। क्या होता है किसी लेबल में? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड, उसका नाम लिखा होता है। जैसे बिस्कुट है, पोटैटो चिप्स है, तो वो सब प्रिंटेड होता है उस पर। इसके अलावा नेम और एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर होता है, नेट वेट होता है व्हेन पैक्ड, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, MRP होता है, बैच नंबर होता है। ग्रेडिंग भी इसी से होती है, लेवल से। तो अलग अलग कैटेगरीज में हम प्रोडक्ट को बेचते हैं, थोड़ा महंगा, उससे सस्ता, या फिर क्वांटिटी वाइज भी होता है। तो सम मार्केटर असाइन डिफरेंट ग्रेड टू इंडिकेट डिफरेंट फीचर और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। For example, popular brand of hair conditioner comes in different categories for different hair. Say for normal hair and for other category, different type of tea is also sold, like yellow, red label और green label। तो ग्रेडिंग की जा सकती है कि कलर से ही बाहर जो प्रिंटेड है उसी से हम पहचान लें, हमें पर्टिकुलरली उसमें पढ़ना ना पड़े। थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन में। नेक्स्ट है हेल्प इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। जो भी लेबलिंग हम करते हैं उससे प्रोडक्ट की प्रमोशन भी होती है, क्योंकि वो जो कलर स्कीम है, जो कुछ प्रिंटेड है, उसी से कंज्यूमर उसको पहचान जाते हैं, अट्रैक्शन होता है उनको या अटेंशन मिलती है। आप आज भी जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, आप जो शॉप में जाओगे तो आप दूर से अपने प्रोडक्ट को देख सकते हो। तो प्रमोशन भी होता है साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। कुछ लीगल इन्फॉर्मेशन भी उसमें लिखी होती है। जैसे एग्जांपल दिया है, स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑन द पैकेज ऑफ सिगरेट और पान मसाला, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ और च्यूइंग टोबैको इज इंजरियस टू हेल्थ।
Such information is required on processed food, drugs and tobacco products. In case of hazardous or poisonous material, appropriate safety warning need to be put on the label.